Hello there, guys. Good morning, everyone. I'm Moving from Unity World, and I'm back with a video which is happening today. So, as you can see, that the protest is happening. It is CJP versus BJP, and the protest. That the reason that the protest is happening because the types of leaks that we can see. This specifically, if you go for the main agenda of the protest, it is about a NEET examination paper which has been leaked and it's happening continuously, and that is the reason that all the students and all the different types of people, they are protesting against the failure of the current government, at the same time the education minister. And that's the reason they're saying that we need transparency in the entire examination process, and at the same time we need the resignation of the education minister. And that is obviously, it is perfectly fine, because under your guidance, if these kind of paper leaks which are happening, then obviously students are going to ask for the accountability. And what the present government is doing, they're just simply beating students, beating different people. You must understand now, we are living in India, and all the people, those who are standing against the government, they are all Indians. They are not coming from any kind of different nations, and they are not sponsored by different people. And even if we can address that thing, that they are coming from different people and they have been sponsored by different amount of people, but the way that they are protesting, okay, these are the reasons through which that we are going to say if these things are happening bad, these are not bad now, these are all correct under your guidance, under the entire power of your guidance, that the paper leaks happen, whether you go for the NEET examination or net examination or any kind of different examination. So we should protest against the things which is happening, because if I am not wrong, that mostly all the political parties, they think that humans are nothing but vote banks. Just like in the war, people are soldiers specifically, they're nothing but numbers, they can be replaced. And specifically in India also, that it is like vote bank, and we have a kind of tendency ki endure unless ki aag ghar ke andar puri tarike se aa jaye. And that is also happening. There are also like many types of paper leaks we confronted, and after that, when it's it hits the crescendo of the horror, we are all protesting. Okay, so what we are just doing, that we are going for the accountability of the public authorities. So if you are under the power and these kind of things are happening, you are going to be questioned, your authorities are going to be questioned. You cannot say, okay, Telegram, because of the Telegram the paper leak is happening, because of the WhatsApp these things are happening. But you must understand their sources are different. The people, those who have been given power to do these things, maybe in their own presence the nefarious tendencies are which are happening. So we must address these things, and then depending on the transparency and the decision making, this is what we are asking कि जो चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से करो. We need a system through which we can say, okay, we trust the entire system, and that is which is specifically the current government is denying. As you can already see, that Sonam Wangchu, the hunger strike, वो वहां पे पूरी तरीके से हुआ था. वो बोले थे कि हम कुछ खाएंगे नहीं जब तक कि ये मुद्दा पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ना हो जाए. उन्होंने क्या किया, उनको ही उठवा लिया. इट्स लाइक कि किसी को वहां पे एबडक्ट किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, वो जाना नहीं चाहते, उनको पूरी तरीके से ढक ढुक दिया सफेद क्लोथ से. सो like that is not happening. We are saying on the one hand कि this is the mother of all democracy, and this is how democracy has been maintained, to just beating all the protesters, those who have some different amount of causes. And जो रैप वहां पे आ रहे हैं, उनके किसी के वहां पे नाम है नहीं, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अरे तेरा नाम दिख रहा है, वो छुपा ले. ये वहां पे हो रहा है. जो डॉक्टर्स वहां पे गए हैं, उनको भी वहां पे मारा जा रहा है, स्टूडेंट्स उनके साथ साथ वहां पे मारा जा ही रहा है. वहां पे तो ऐसा कुछ था नहीं ना कि दे वर डूइंग एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज. दैट वाज नॉट देयर. So present government is thinking in that way कि we are not going to acknowledge anyone. As we can see that whether we acknowledge or not, we are going to win in the votes. वोट में तो हम जीत ही जाएंगे. So what is the point of acknowledging? ये यहाँ पे चल रहा है. तो obviously we should protest against the things which are happening. Say for example paper leak. ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं, ये जो धांधली चल रहा है पूरी तरीके से different types of examination में हो रहा है. Some evidences we can see, some evidences we cannot see, we can only speculate. That like the net examination recently that happened for the June examination, how many questions are coming from the PYQs? So तुम पूरी तरीके से PYQs हो क्यों ही वहां पे पूरी तरीके से चाप दे रहे हो. तो ये क्या एक तरीके से लीक है नहीं. Obviously it's a different amount of leak, different type of leak that is happening. So at the end it is leak. So what Indian students and all the Indians are protesting against, they are saying they have simple demands. See, we need to stop this amount of leaks. We need a transparent government who are accountable for the things that they are going to do. On the other hand, what NTA is doing, if पूरी तरीके से जो भी examination होता है, that is
under the power of the NTA. So what they're saying is, oh, we are just conducting the examination. You cannot say we are just conducting the examination. There are many things which are involved in the examination. वहां पे एसी नहीं चल रहा है, किसी का कुर्सी है नहीं, किसी का सिस्टम हैंग हो रहा है, किसी का सिस्टम चल ही नहीं रहा, किसी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चल रहा है. तो इट इज द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक ओके समवन इज गोइंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन एंड और नीट एग्जामिनेशन, दे आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. पूरी तरीके से जो तुम पैसे वहां पे ले रहे हो, 1-1.5-2 हजार रुपए, वहां पे तो ऐसा है नहीं कि वहां पे लाइक कुछ भी हम करेंगे एंड कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसके ऊपर हम पैसे ले रहे हैं. एंड ये हो ही रहा था. अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो वहां पे ये चलता ही रहता कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, चलो ये चलते रहता है. और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है कि डिफरेंट पीपल केम विद डिफरेंट एजेंडास. सम कोई बोल रहा है कि 370 आर्टिकल, कोई बोल रहा है कि कश्मीरी से, कोई बोल रहा है कि ब्राह्मणवाद मुद्दावाद. सो like this is what is going to happen, that different people are going to come with different agendas and they're going to say ki these are the my problems and I'm going to share with my problems, I don't care about what you are suffering or not. and ये वहां पे हो रहा है. तो जो मुद्दा है वहां पे, जहां पे एक के अंदर वो चीज वहां पे सिमट कर रहना चाहिए था, वो वहां पे 4 हो गया है. एंड जो मेन मुद्दा है उसको हाईजैक कर लिया है ये बाकी 4 मुद्दे ने. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. अब कश्मीर के साथ नेट एग्जामिनेशन का क्या लिंक है? नीट एग्जामिनेशन का 370 के साथ क्या लिंक है? ब्राह्मणवाद के साथ इसका क्या लिंक है? ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इससे कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है. तो ये डिफरेंट चीजें वहां पे वो हो रहे हैं. एंड एट द एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नेट एग्जामिनेशन हो या चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, both of the things are related. In the NEET examination and the NET examination, that we saw the paper leakage of the paper, didn't we? Just go for the June examination of 2024. उन्होंने क्या बोला था कि we are going to conduct the entire examination based on the ऑफलाइन पेपर. ऑफलाइन में क्या हुआ, वहां पे पेपर लीक हो गया. फिर से उन्होंने अगस्त से सितंबर को उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ा नेट एग्जामिनेशन का. So it is not only restricted to one system, because you must understand the system that we are mentioning here, this system it is pervading other system also. क्योंकि वो जो बॉडी है, गवर्नमेंट जो बॉडी है, वो तो सेम ही है ना. एंड वही तो यहाँ पे जाकर के बोल रहे हैं कि अरे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ. तो हो क्या रहा है, बॉटल चेंज हो रहा है बट वो जो पानी है वो सेम ही है. The water is polluted but the container we are changing it. So like we cannot say कि कंटेनर अगर हम चेंज कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो एट द एंड पॉल्यूटेड रहेगा ही. सो that is what is happening, whether it's NEET examination or NET examination, it is happening, the paper link, and we must address these issues seriously. But problem ये होता है कि like अभी सभी लोग चिंता कर रहे हैं कि okay the NET examination answer keys are not coming. अब मान के चलो कि if they provide NET examination answer key, then what? तो ये मुद्दा तो पूरी तरीके से तुम हट गए ना इससे कि नीट गया भाड़ में, हमारा नेट एग्जामिनेशन का आंसर की आ गया है, अब हम बढ़िया रहेंगे. When they are going to publish the net examination answer key, it is up to them. Maybe 2 days, 5 days, 7 days, 10 days, 15 days is going to be needed. Like happen, ये हुआ था एक साल पहले ही कि नेट एग्जामिनेशन का they provided the answer key within 10 days and the result came after 30 days. तो पूरा 42 days का ये सर्कल हो गया था. So that happened. So problem here is not that a delay of the net answer key. It is not the problem here. We must address that there is a problem which is known as paper leak. And it happened in the NEET examination, at the same time the NET examination. And we must address that these kind of paper leaks which are happening in India, and where Indian government are saying that we are the democratic country. And how democratic? By providing the paper leakage. कि चलो कुछ स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे, इससे बेहतर ये है कि सबके सामने ही ये दे देते हैं, सभी देख करके आओ. तो ये है डेमोक्रेसी कि सबको वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जामिनेशन में बैठने को, वो ध्यान दे के पेपर दे करके. तो ये डेमोक्रेसी तब तो बहुत बढ़िया है. सो हम मुद्दे से हट जा रहे हैं वहां पे कि हम वहां पे नेट एग्जामिनेशन के आंसर की के साथ साथ इसका वहां पे हम जोड़ दे रहे हैं. तब तो कोई भी कुछ भी बोलेगा वहां पे, अरे इसको राम रहीम जो है उसको वहां पे छोड़ दो. ऑल्दो ये घूम ही रहा है बाहर पैरोल पे, बहुत दिन से वो घूम रहा था. सो वो उससे लिंक कर देगा नीट का. बट यहाँ पे नेट एंड नीट का जो कॉमन ग्राउंड है यहाँ पे, इट इज नॉट द आंसर की. यू कैन फाइंड आउट द कॉमन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द पेपर लीकेज. तो जो मुद्दा है वहां पे पेपर लीकेज के ऊपर ही वहां पे बात करो. एंड प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वहां पे स्टूडेंट्स को साथ भेज रहे हैं, प्रोफेसर्स यहाँ पे है ही नहीं. एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. यू कैन से दैट दे आर अर्निंग लाइक 3.5 to 4 lakh per month, पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर नॉट देयर. वो चुपके वहां पे गली मोहल्ले में बोल रहे हैं कि okay, NET examination should not be like this. It is too much of actual examination. Like we should not consider
The students, those who are having the JRF, they are the only meritorious students. But if you go for their actions, what they are doing, they're going for, if you go for different universities, the university which consider themselves as superficially so great, or like in essence so great, they're also saying that we are going to take only JRF students. They're denying, but at the same time they're not opening the field for other students, those who are not having the net, or those who are having the second and the third category. They're also saying that okay, we are going to take only the first category. But वो पीछे पीछे तुम सुन ही पाओगे कि वो पीछे पीछे बोल रहे हैं कि अरे एग्जामिनेशन ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए। वो कौन बोलेगा? तुम्हारे पास में तो बैंक में तो करोड़ पड़े हुए हैं, उसके बाद लाइक 50-60 साल वहां पे, 60-70 साल हो ही गए हो, एंड उसके बाद भी वहां पे अगर सोच रहे हो कि अरे इट इज द फाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, लाइक तुम जी कैसे रहे हो? स्टूडेंट के पैसे से ही ना, स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके पैसे आ रहे हैं तुमको, द प्रोफेसर दोज हु आर सेटिंग द पेपर्स। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो वहां पे टीचर कहाँ पे है? किसको तुम जाकर के पढ़ाओगे? कुत्ते बिल्ली को? क्योंकि दिस इज एनिमल स्टडीज, दिस इज प्लांट ह्यूमनिज्म, ये पढ़ोगे वहां पे जाकर के कुत्ते बिल्ली को? नहीं ना। तो यहाँ पे इंडिया में जो हालत हो गया है स्टूडेंट का, वो मतलब कुत्ते से भी वहां पे खराब है। कुत्ता अगर वहां पे भौंक रहा है 1-1.5 घंटे तक, तब तो वहां पे गली मोहल्लों में जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अबे भाग जा। यहाँ पे तो लाइक पूरी तरीके से डिनायल में चल रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट। एंड उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी आते हैं ब्राह्मण बार लेकर के, कश्मीरी इशूज लेकर के, 370 इशूज लेकर के। पूरा था मुद्दा एक के ऊपर, चला गया है जेड के ऊपर। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। सो जो भी वो ये देख रहे हो वीडियो, दिस इज माय अपील एट द सेम टाइम दैट लाइक सपोर्ट इट, बिकॉज देखो एट द एंड ये मुद्दा इसमें रिलेटेड है नहीं सिर्फ नीट में, एक घूम करके इधर उधर जाकर के नेट में आ ही गया है पेपर लीकेज। हाँ, अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे 1:2 वहां पे या 3 आएगा कि 3 बार नीट में हो गया है, 2 बार नीट में हो गया, नेट एग्जामिनेशन में 2 साल में 1 बार हुआ है। एंड इफ वी कंसीडर दैट द PYQs आर आल्सो द पार्ट ऑफ द पेपर लीक, देन वी कैन से ओके 2 एग्जामिनेशन का लीक ऑलरेडी हो गया है, वी कैन से दिस थिंग्स। तो घर पे ऑलरेडी आग आ चुका है, ये जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी सतर्क हो जाओ। अब इस चीज में कभी भी जाकर के मत फंसना कि अरे ये प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि मेरा टैग यूज कर लो, लाइक गो फॉर द प्रोटेस्ट बाय यूजिंग इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड नाउ यूज माय टैग। अब ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी है, क्योंकि अगर इफ यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पेपर लीक व्हिच इज हैपनिंग ऑब्वियसली, एंड अगर ये गवर्नमेंट अगर कुछ ना करे, हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट ना करे, तो ये चलता ही रहेगा। जो वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी सारे रेजिग्नेशन नहीं देंगे। एक एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि अरे हम तो ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं होता, इट्स लाइक दैट। तो लाइक प्रोफेसर का यहाँ पे क्या काम है, या जो टीचर्स है उनका यहाँ पे क्या काम है? उनका ये काम है सिंपल कि जाकर के प्रोटेस्ट करना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसके ऊपर बोलो तो सही। ऐसा है नहीं कि मेरा टैगलाइन यूज कर लो कि मेरा टैग है ये, उसके बाद जाकर के लिखो कि नीट पेपर लीक, नेट पेपर लीक, #माय नेम। अब ये तो तुम PR करवा रहे हो स्टूडेंट से। खुद का अगर PR टीम नहीं है तो स्टूडेंट से ही PR करवा लेते हैं। क्या ये PR है? नहीं। मैं अगर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कैसे घुस गया कि मेरा टैग यहाँ पे यूज करो? ये तो सेम ही हो गया ना कि ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। इज दैट इवन वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट हो रहा है कि द पेपर लीक व्हिच इज हैपनिंग, एंड दैट इज अ serious deadly issue that you are manipulating the entire future of different students। और जा करके मैं बोल रहा हूँ कि अब ये कर लो वो कर लो, मेरा टैग यूज कर लो, इसका बाप का टैग, इसको, ये सब वहां पे चल रहा है। मतलब इंडिया में अलग ही खेल चल रहा है। कोई भी मतलब सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम चल रहा है, वो है पैसे का। किसी को भी बेवकूफ बना लो, उसके बाद मेरा वहां पे प्रमोशन होना चाहिए, मैं वहां पे करंट न्यूज़पेपर में रेलिवेंट होना चाहता हूँ। So that is bad. So we should protest against the reason. What is the reason? The paper leaks are happening. So we do not need this authority. We need a complete overhaul. And overhaul अगर नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले से भी ये बोल रहा हूँ कि तुम लाइक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हो 1,500 रुपए लेकर के, उसके बाद तुम जो गलती कर रहे हो उसके ऊपर मेरे को 200 रुपए देना होगा। क्यों भाई? मैं क्यों दूं? Why should I provide this money? ये तो सेम ही हो गया कि किसी ने आकर के घर में प्लम्बर वाला काम कर रहा है, उसने बोला कि भैया ये नल चलाने के लिए हम वहाँ पे आपसे 1,500 रुपए लेंगे। मैंने 1,500 रुपए दे दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है चला के देखते हैं। अब वहाँ पे फिर भी पानी टपक रहा है, तो उसने बोला कि 500 रुपए फिर से लगेंगे इसको ठीक करने में। तो अभी तूने क्या किया? यही तो चल रहा है ना, क्योंकि मैंने किसी को ठोक दिया, अब जो वहां पे मर गया है उनका फैमिली मेरे को पैसे दे रहे हैं कि मैंने उनका जो
सत्यानाश कर दिया, उनके लिए वो ग्रेटफुल है। ऐसा तो वहां पे हो गया है ना कि तुम ये सब कुछ स्क्रू अप कर रहे हो, उसके लिए पैसे कौन दे रहे हैं? हम। सफर कौन हो रहा है? हम जो सफर कर रहे हैं वो जाकर के पैसे दे रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा। तो पूरा इश्यू जो है ना, वो सब कुछ पूरा चल रहा है एक सिस्टम, द सिस्टम दैट वी आर लिविंग इन, एंड इन दैट सिस्टम वी आर सिंपली सेइंग कि सब चंगा से। जब तक घर के अंदर आग नहीं आता तब किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लिटरेचर पढ़ लो या फिजिक्स पढ़ लो। लिटरेचर पढ़ रहे हो इसका मतलब थोड़ी है कि हम लिटरेचर से, प्लेटो से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, लाइफ पूरी तरीके से प्लेटो जैसा हो गया है, या सोक्रेटिस जैसा संघर्ष करके हम आगे बढ़ेंगे, या नेताजी जैसा, या भगत सिंह जैसा। भगत सिंह का किताब अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं थोड़ी ही बोलूंगा कि मैं भगत सिंह हो गया। एक्शन में अगर वो नहीं दिखता है तो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द एक्शन। तो वी शुड डू दिस थिंग्स। जो वहां पे जा नहीं सकते, या वहां पे कुछ भी कारण है वो जा नहीं सकते, यू शुड just show your all types of influence and all types of support through Instagram and YouTube and all to make videos in this matter, because we have to be united in order to protest against that, because the government or any kind of government you can say, चाहे ये बीजेपी ले लो या चाहे कोई भी गवर्नमेंट ले लो, वो देख रहे हैं कि इंसान है, वोट बैंक है। एंड बाकी जो वहां पे इसके ऊपर लाइक जो वोट के अंदर नहीं आता है, वो बोल रहे हैं कि अरे नंबर्स है, स्टूडेंट्स आर जस्ट नंबर्स। हमारे पास 1,000 स्टूडेंट्स है, हमारे पास 5,000 स्टूडेंट्स है, हमारे पास 1,500 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे पास 2,000 स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स हैव बीन डिह्यूमनाइज्ड, यू कैन से, दे आर नाउ प्रेजेंटेड एज अ नंबर। तो प्रोटेस्ट के ऊपर मैं तो यही बोलूंगा कि सपोर्ट करो, ये सपोर्ट करना वहाँ पे जरूरी है। मेरा तबीयत 3-4 दिन से ठीक ठाक है नहीं, मैंने सोचा कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है, असली मुद्दा यही है। असली मुद्दा ये है नहीं कि पेपर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करो, मैंने पढ़ा है नहीं तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दो, ये कैसा मुद्दा है? वो मुद्दा के अंदर आएगा ही नहीं। ये मुद्दा असली है कि पेपर लीक व्हिच इज हैपनिंग एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। राइट, तो यही जस्ट मेरे को बोलना था।